Dear student of standard 9th, and we will continue our part 2 of chapter number 14, that is geological structure and physiography of India part 2. So here we are going to discuss the topic rock. So what is rock? A composition matter made up of one or more minerals is called rock. So rock is a combination of minerals. So it can be one mineral also, it can be more than one also. So rock is basically, we can say, hard also, and it can be soft also. Well, it can be porous, it can be non porous also. It is light in weight, वजन में हल्का भी हो सकता है, and it can be heavy also. So according to our book, rocks is divided into three categories on the basis of its formation. वो मतलब उनका फॉर्मेशन के बेस पे से वो कैसे बना हुआ है. वेल, वी कैन से igneous rock, stratified rock, and metamorphic rock. Well, here the chart is given to you, so just go through it. Now friends, first one is igneous rock, but before that I would like to inform you that just recall some of the content from the standard 8, where we had seen that initially earth is a big ball of fire. It gets separated from the sun, and slowly and gradually it's cooled down. Okay. And when there are lots of volcanic activities going on at that time, so when the lava comes out from the volcano, that lava cools down and it become in solid form, and these are the igneous rock, जिसको हम लोग हिंदी में अग्निया भी कहेंगे. So it's a newly formed rock, and that is why we are saying it primary rock. So such kinds of rocks are available in our country in the state of Rajasthan, Madhya Pradesh, and some part of the southern peninsula also. Granite and plutonic rock are its example. Balset also is there. Now, जब ये जो इनिशियली जो igneous rock formed हुआ है, so they get slowly and gradually they get disintegrated as the time passes on. So there's a crack developing them due to the rainfall and water. So their layers are forming in new way. So such kinds of rock, they are divided into different parts, and that is why we are saying it as stratified rock. Okay. And example are the gypsum, limestone and coal. ये थोड़ा सॉफ्ट टाइप के हो जाते हैं, एंड सच काइंड्स ऑफ रॉक्स आर अवेलेबल इन बिहार एंड झारखंड. सो यू नो इट वेरी वेल कि कोल एंड लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा बिहार एंड झारखंड में पाया जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेटामॉर्फिक रॉक, it's a peculiar condition. Peculiar condition means there are some chemicals process which is going inside the earth, and due to that pressure some new type of rocks were formed. Okay. And this type of rock are, if we talk about, then example is marble and bauxite. So we can see कि जो मार्बल होता है वो अलग अलग टाइप के आते हैं. ग्रीन मार्बल भी आता है, ब्लैक मार्बल भी आता है, यूजुअली वाइट भी आता है. सो दिस आर फॉर्म ड्यू टू द केमिकल कॉम्पोजिशन. अर्थ का इंटीरियर प्रेशर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. स्पेशल वाटर के कारण भी हो सकता है, ड्यू टू सम केमिकल एंड ऑल डेट, सम डिफरेंट मिनरल्स. ओके. टॉकिंग अबाउट मिनरल्स, देन our next topic is of course mineral only, and mineral is formed due to the natural, organic, inorganic process and some chemical composition. So minerals can be available in the solid, liquid and the gaseous form. Now just make some category कि कौन से रॉक में से हमको कौन से मिनरल्स मिलते हैं. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस द इग्निशियस रॉक. सो इग्निशियस रॉक में से हमको मिलता है आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर. ओके. जबकि स्ट्रेटिफाइड रॉक में हमको क्या मिलता था? कोल, मिनरल ऑयल, है ना, लाइमस्टोन भी हमने देखा था, नेचुरल गैस यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड वाइल स्लेट, मार्बल, डायमंड आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक. So if we classify it, then there are 200 different types of minerals are there, which we are using directly or indirectly. So classification is not possible, but generally we had classified minerals into three categories. Metallic, जो बहुत ठोस और मजबूत होते हैं. नॉन मेटलिक, जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं. एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जहाँ पे हमारा फ्यूल कंजम्पशन एंड जो हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. सो मेटलिक minerals further subdivided into four categories, where the precious metallic minerals में gold, silver, platinum आता है. Here are the minerals जो बहुत expensive है.
लाइट मेटेलिक मिनरल्स, सो मजबूती फुल है लेकिन ये थोड़े वजन में हल्के होते हैं, दैट इज मैग्नीशियम, बॉक्साइट एंड टाइटेनियम। वेल, मिनरल्स फॉर द जनरल यूज़ जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, टिन एंड निकल। While if you talk about minerals used as alloy means this kind of mineral we can't use directly. So हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के जो 3 कैटेगरीज के मिनरल्स हैं उसमें हम लोग उसको कुछ पार्ट मिक्सअप कर देंगे एंड जिससे वो मिनरल कंप्लीट हो जाता है. सो क्लोरीमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टेन, वेडिनम उसका एग्जाम्पल है. पॉइंट नंबर 2, नॉन मेटेलिक मिनरल्स. इसमें लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टोस, माइका, प्रॉस्परस, जिप्सम, सल्फर, डायमंड एक्सेट्रा सब आते हैं. एंड एनर्जी रिसोर्सेज में कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा इसमें इंक्लूडेड है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए और एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं. नाउ देयर इज अ टेबल गिवन टू यू एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेबल मेजर मिनरल्स एंड देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन. सी कौन सा मिनरल है और वो इंडिया के कौन से स्टेट में पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग आयरन फॉर यू, रेस्ट ऑफ यू हैव टू बी डून बाय योर ओन. सो डन बाय योर ओन. Iron we can able to find in India in Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Goa, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, Bihar, Madhya Pradesh. So this is very important because it is going to be repeat in your standard 10th also. Let us move to the soil formation. Well, usually the upper layer of the earth is called soil where the agriculture is possible, and agriculture is the most important activity because we are totally depending on it. So that soil where we are doing the all kind of agriculture activity is formed due to the organic and inorganic activity on the surface of the earth. Okay, जैसे एप्पल होता है, एप्पल के ऊपर की जो रेड स्किन होती है ना, हमारे अर्थ के ऊपर भी जो सॉइल है वो बस इतनी पतला लेयर ही है. Okay, they had given the comparison, and the thin layer of the crust of the earth is called soil. So soil formation is something like कि पहले जब सन में से एक पार्ट डिटेच हुआ था जो अर्थ बना था एंड वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कूल डाउन हुआ. सो जो रॉक थे इनिशियली इन डे दे गेट यूज टू गेटिंग हॉट, नाइट में वो कूल डाउन होते थे एंड कंटिन्यूस रेनफॉल से उनमें क्रैक्स बन के वो बड़े बड़े पत्थर बने एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो स्टोन से पेबल्स से ग्रेवल्स एंड सॉइल पार्टिकल्स एंड इससे बहुत सारे एयर, रेन, स्नो, इंसेक्ट, ट्री के जो लीव्स होते हैं ये सब मिक्सअप होकर एक पाउडर टाइप का फॉर्म बन गया जिसको हम लोग रिगोलिथ कहते हैं. अगेन इट्स अ मिनरल ऑल्सो. 1 minute. नाउ so biotic matter contains air, water and they all mixed up together and they form the soil. Okay, so this is how soil is formed. So talking about soil बनना कोई बहुत क्विक प्रोसेस नहीं है. इट टुक लैक्स ऑफ ईयर्स. ओके, हमारा जो अर्थ है वो 4.5 करोड़ साल पुराना है, 4.5 करोड़. एंड देर आर सर्टन प्लेस जहाँ पे सॉइल फॉर्म्ड हो गई है, देर आर सर्टन प्लेस जहाँ पे अभी सॉइल फॉर्मेशन चल रहा है. सो इट टुक लैक्स ऑफ ईयर टू फॉर्म द सॉइल. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सॉइल क्लासिफिकेशन, वेल हम लोग उसको 6 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. नंबर 1 एलुवियल, नंबर 2 ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल. वी कैन सी ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल के कलर पे रखा गया है. ओके, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, बट बिफोर डैट जस्ट वॉच द मैप ऑफ इंडिया. इन दिस मैप यू कैन सी द लाइट ब्लू पार्ट जो राजस्थान में दिया हुआ है, डेट इज़ नथिंग बट द डेजर्ट सॉइल. ओके, वेल ऑरेंज पार्ट जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, यू विल सी इट है एलुवियल सॉइल. पिंक पार्ट जहाँ पे इंडिया का एन एंड डी लिखा हुआ है, डेट इज़ द ब्लैक सॉइल. ये ब्लैक सॉइल किसे फॉर्म हुई थी? लैक्स ऑफ ईयर्स एगो. यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती थी एंड डेट मैग्मा कम कूल डाउन एंड वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गया. एंड देन रेड सॉइल, वेल नो नीड टू डिस्कस, कलर रेड ही है. एंड लेटराइट सॉइल ग्रीन पैचेस में आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं है बट फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल यू कैन से इन द जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख एरिया एंड उत्तरांचल एंड Himachal Pradesh. Some part of the Assam is also we can able to see. Now talking about the type of soil, this is the last topic of the day. 6 types of soil. First is the alluvial soil. Alluvial soil are of 2 types, Kadar and Bangar.
सो कादर एंड बांगर क्या होता है? सी, आई एम रीडिंग द सेकेंड लाइन, सो स्टे फोकस. द सॉइल फॉर्म ड्यू टू द फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट इज नोन एज द कादर सॉइल. रेनफॉल जब ज़्यादा होता है ना तो रिवर गेट फ्लडेड एंड उनके साथ बहुत सारा कीचड़ भी आता है. तो जो न्यूली लेयर आता है ना कीचड़ का, उसको हम कादर बोलेंगे. के फॉर कादर, के फॉर कीचड़, इतना माइंड में रखो, ठीक है. एज द सॉइल फॉर्म ड्यू टू द रिवर फ्लड है ना, फ्लड आया ना, इट इज़ मोस्टली नियर बाय द रिवर. सो रिवर के आसपास में ही होगा एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कादर. अब जब ये बात, अब नेक्स्ट ईयर फिर से सपोज करो कि रिवर में फ्लड आया, अब एक नया लेयर बनेगा, फिर उस पर भी नया लेयर बनेगा. सो ये लेयर बनते जाएंगे एंड जो पुराना लेयर है ना, जो मतलब आज से 5 साल पुराना जो फ्लड आया था, तो उसका जो सॉइल होगा ना वो थोड़ा डार्क कलर में हो जाएगा एंड उसको हम लोग बोलेंगे बांगर. बांगर सॉइल. मैं तो भंगारी बोलता हूँ, क्यों? पुरानी चीज़ें को भंगारी बोला जाता है. तो ये जो सॉइल है ये पुरानी हो गई है, तो इसको हम बांगर बोलेंगे, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ सॉइल एंड एलुवियल सॉइल यही होता है. इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी ईयर बाय ईयर रिचार्ज होती रहती है एंड सच काइंड ऑफ सॉइल यू विल फाइंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज द ब्लैक सॉइल. एंड फ्रेंड्स, एज आई सजेस्ट यू, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण जो मेटामॉर्फिक रॉक था, सो ये मैग्मा लावा कूल डाउन हुआ एंड इससे ये सॉइल फॉर्म्ड हुई है. सो सच काइंड ऑफ सॉइल यू कैन एबल टू सी इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. सो ब्लैक सॉइल इज़ अ गिफ्ट टू द पेनिनसुला प्लेटो. एंड ये जो सॉइल होती है वो बहुत स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है एंड फर्टाइल ऑल्सो. सो इट हैविंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. अगर इसमें पानी बहुत देर तक जमा रहता है एंड डेट इज़ वाई इट इज़ वेरी गुड फॉर द कॉटन कल्टिवेशन. डेट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल एंड इसको बहुत जगहों पे रिगर सॉइल भी कहा जाता है. ओके. सो एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल द मोस्ट इम्पोर्टेंट. स्टैंडर्ड 10th में भी आएगा, सो बी केयरफुल. नाउ द रेड सॉइल. रेड सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ द इग्निसस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. तो जहाँ पे भी इस टाइप की रॉक्स पाई जाएंगी वहाँ पे ये रेड सॉइल पाई जाएगी. रेड सॉइल मीन्स इसका रेड कलर होता है, तो रेडिश टाइप की दिखती है. एंड वाई इट इज ए रेडिश कलर? बिकॉज देयर इज ए केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दैट केमिकल इज द ferrous chemical, and maybe I am not able to pronounce it properly, but ferrous, FERROUS, ferrous chemical होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है. एंड ये सॉइल थोड़ी पोरस भी होती है, फर्टाइल भी होती है. सच काइंड ऑफ सॉइल यू कैन एबल टू फाइंड इन गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड. एंड नाउ the final slide, that is the laterite soil, mountain soil and desert soil. Well, laterite soil is result into the excessive soil erosion. जब रेन फ्लड आता है तो सॉइल का अपर लेयर पूरा वॉश आउट हो जाता है एंड जो नीचे जो सॉइल बचती है डेट इज कॉल्ड द लेटराइट सॉइल. एज यू नो इट कंटेन वेरी लेस ह्यूमस, सो ये बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती है. पर हाँ, इसमें हम लोग अगर फर्टिलाइज़र सब मिलाएं तो इसको हम लोग फर्टाइल करके एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके. एंड इसमें यूजुअली आयरन एंड एल्यूमिनियम कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है एंड ड्यू टू द इरोजन इसका कलर रेड हो जाता है. एंड फ्रेंड्स, दिस काइंड ऑफ सॉइल यू कैन एबल टू फाइंड इन द डेक्कन रीजन, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट द माउंटेनस सॉइल, हिमालय माउंटेन्स के आसपास में पाई जाती है एंड इट इज़ अ लेस डेवलप सॉइल, क्योंकि जो पहाड़ों से जो पत्थर आते हैं अभी वो डेवलप नहीं हुए, वो स्लोली अभी नीचे जाएंगे तो स्टोन से पेबल्स, फिर बाद में वो सॉइल में फॉर्म होंगे. सो इसको माउंटेनस सॉइल बोलेंगे. एंड ये सॉइल कहाँ पे मिलेगी हमको? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड ईस्टर्न स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर स्टेट. सी फ्रेंड्स, अब ये सॉइल डेवलप नहीं हुई है तो इसके अंदर वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी होगी नहीं, ह्यूमस भी नहीं होगा. सो ये एग्रीकल्चर के लिए इतनी अच्छी सॉइल नहीं मानी जाती है. टॉकिंग अबाउट द लास्ट सॉइल ऑफ द चैप्टर एंड द टुडेज टॉपिक इज द डेजर्ट सॉइल. वेल, डेजर्ट सॉइल इज़ एंड सॉइल जिसके अंदर बिल्कुल वाटर होता ही नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल लेस होती है. एंड सच काइंड ऑफ सॉइल यू कैन एबल टू फाइंड इन गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, बिकॉज इट हैव मोर एल्कलाइन एंड लेस ह्यूमस. एंड एग्रीकल्चर इज not possible if we add manure
and if we got water, then and only we can able to grow crops on it. So friends, in this chapter we had seen that in India we are able to find large variety of soils and in the climate also. So friends, here is your homework where you are supposed to solve this question number 4. uh, of course, MCQ part is given to you, so 5 MCQs are given to you that you are supposed to be solved. Now your activity: arrange visit a major archipelagos of India. Okay, visit करना चाहिए if your budget allowed. With the help of the atlas, observe the map and relief feature of the India and study. So इंडिया में कौन सी जगह पे हाइट वाली है, कौन सी कम हाइट की है. एंड प्रिपेयर एन एल्बम कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक earthquake, volcano. Prepare a model of it. Okay, if you have a lot of time, then you can do such kind of activity. Well, here I am concluding my chapter of 14 number, and both the part are covered. Hope so you will like it. Thank you very much. Have a nice day.